So, well, last time we have discussed Fourier integrals, and then we have discussed in detail what is Fourier integral theorem. And that part is essential for defining this Fourier transform. Okay. So, today we will discuss, we will define what is Fourier transform. So, before we start, we define Fourier transform. Let us see what are the sufficient conditions for the existence of Fourier transform. So, the sufficient conditions for the existence of Fourier transform are sufficient conditions for the existence of Fourier transforms are: number 1, fx is piecewise continuous. Fx is, this function is piecewise continuous on every finite interval, okay, on every finite interval. And second sufficient condition is fx is absolutely integrable on the x-axis. Fx is absolutely integrable on the x-axis. Similarly, we have sufficient conditions for the existence of inverse Fourier transforms. Fs is absolutely integrable over this interval minus infinity to plus infinity. And second is limit Fs is equal to 0, and this limit magnitude of s tends to infinity. Okay? This limit is equal to 0. So, these are the sufficient conditions for the existence of Fourier transform, and these two are the sufficient conditions for the existence of inverse Fourier transforms. Now, let us define what is Fourier transform of fx. The Fourier integral, we know, we have already discussed Fourier integral of fx in the complex form, and that Fourier integral of the function fx in complex form can be written as fx is equal to 1 over under root 2 pi integral minus infinity to plus infinity 1 over under root 2 pi integral minus infinity to plus infinity ft e raised to power eta st dt and e raised to power minus eta s x ds. ये जो टर्म है ये मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिखी है. क्लियर? मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूं. 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई को मैं बाहर ले आया. ठीक है, तो ये रिजल्ट बनेगा 1 ओवर 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई रेस्ट पावर आइटा एस टी डी टी ई रेस्ट पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एस. ये आपने फोरियर इंटीग्रल में प्रूव किया हुआ है कि वी कैन रिप्रेजेंट एफ एक्स लाइक दिस वे विच कैन बी रिटन लाइक दिस वे. तो देखिए ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है. क्लियर? और ये जो एफ एक्स है ये आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है. क्लियर? सो द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट इज ए फंक्शन ऑफ एस, इज ए फंक्शन ऑफ एस, एंड दैट वन इज डिनोटेड बाई एफ एस. सो this term is denoted by fs, okay, which is called Fourier transform of the function fx. So this bracketed term is Fourier transform of the function fx. And since t is a dummy variable, so we can replace this t by x. Then this expression becomes fx is equal to 1 over 2 pi as it is integral minus infinity to plus infinity, and this bracketed term is fs e raised to power minus eta sx as it is ds as it is. Okay? So when we write this as fs, then this fx can be written like this. Where what is fs? Fs is integral minus infinity to plus infinity fx e raised to power eta sx dx. We replace here t by x because this t is a dummy variable, so we can replace this t by x. So we obtain this fs. तो जब भी फोरियर इंटीग्रल फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको किसी फंक्शन का निकालना होगा, ठीक है, fx का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालना होगा तो आपको fx की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके ये इंटीग्रल को सॉल्व करना है.
और साथ में अगर आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी अगर इवेल्युएट करना है तो जो भी वैल्यू एफ एस की आएगी वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करके इस एफ एक्स को इवेल्युएट करना है. दैट वन इज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. क्लियर? So fs defined in this third, okay, is known as complex Fourier transform of fx, and fx defined in this expression number 2 is known as inverse complex Fourier transform of fs. So in this way you can define these two terms, Fourier transforms as well as inverse Fourier transforms. Clear? Now see, this one is Fourier transform and this one is inverse Fourier transforms. So we have few important remarks. Okay? Now first important remark is these two fs and fx, these are known as Fourier transform pair. Fourier transform pair. This one is Fourier transform and this one is inverse Fourier transform. This one is Fourier transform of fx, this one is inverse Fourier transform of fs. Number 2, the factor 1/2 pi can multiply in the expression of fs. ये जो 1/2 pi है आप यहां भी 1/2 pi लिख सकते हो, तो फिर आपको यहां 1 लिखना पड़ेगा. Clear? So factor 1/2 pi can multiply in the expression of fs in the integral third instead of expression of fx in the integral 2. That one is a second important remark. Third one is basically the choice of normalizing factor. Normalizing factor means 1/2 pi under root or 1/2 pi in the integral 2 and 3 is optional. ये 1/2 pi आपने यहां लगाना है या यहां लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सेकंड, आपने 1/2 pi under root अगर यहां लगाओगे तो यहां भी फिर 1/2 pi under root लगेगा. अगर आपको सिमेट्रिकल फार्मूले चाहिए, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है, तो आप इन दोनों में 1/2 pi under root 1/2 pi under root लगा सकते हो. अकॉर्डिंगली आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे. क्लियर? सो टू मेक द टू इंटीग्रल सिमेट्रिक as possible we can multiply 1/2 pi under root in both the expressions, and this is optional. This is our choice. Okay, now we call fx this 1/2 pi integral fs e raised power minus eta sx as ds as the inversion formula. So this expression is also known as inversion formula corresponding to fs is equal to integral fx e raised power eta sx dx. So this expression is also known as inversion formula, or in other way inverse Fourier transform. Okay, now sometimes we call fx 1/2 pi integral fs e raised power eta sx. देखिए पहले माइनस आइटा एस एक्स था, अब मैं यहां पे e raised power प्लस आइटा एस एक्स लिख रहा हूं. So sometimes we call fx this as inversion formula corresponding to fs is equal to, यहां पर मैं माइनस आइटा एस एक्स लगा रहा हूं. तो कई बार इसको भी इन्वर्शन फार्मूला कुछ टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. क्लियर? एंड समटाइम्स वी डिनोट f bar s in place of fs. कई टेक्स्ट बुक्स में ये नोटेशन है और कई टेक्स्ट बुक्स में ये नोटेशन है. क्लियर? एंड Fourier transform breaks up the function into a continuous spectrum of frequencies s. Clear? अब देखिए ये मैंने एक चार्ट बनाया है. मैं इस पूरी वीडियोस में जितने भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, जितने भी हम प्रॉपर्टीज करेंगे, मैं कौन सा फार्मूला यूज करने वाला हूं? मैं ये फार्मूला यूज करने वाला हूं. क्लियर? Where fx is 1/2 pi integral ft e raised power eta st dt e raised power minus eta sx ds. Where can be written as fx is equal to 1/2 pi integral fs e raised power minus eta sx ds, where this fs is equal to this bracket term means this term. मैं इसको यूज करूंगा और सारी प्रॉपर्टीज, जितने भी प्रॉपर्टीज उनके प्रूफ, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन इसी फार्मूले पर मैं सॉल्व करूंगा. क्लियर? बट कई टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से भी लिखा हुआ है, ये भी सही है. ओके, ये जो 1/2 पाई है वो अंदर है, इस ब्रैकेट टर्म के अंदर है, तो fs के अंदर चला गया. कई टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से डिनोट किया गया है और कई जगह पे सिमेट्रिकल रिजल्ट्स बनाए हैं.
क्लियर, 1/2 पाई अंडर रूट, 1/2 पाई अंडर रूट, तो यहां भी 1/2 पाई अंडर रूट है, यहां भी 1/2 पाई अंडर रूट है, बाकी तो सेम है, ठीक है। अब इन सारे रिजल्ट्स में इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर माइनस इधर प्लस, बट कुछ टेक्स्ट बुक्स में यहां प्लस है इधर माइनस है, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स जो है वो इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं, क्लियर। सो एफ एक्स इज 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एस ई रेज़्ड पावर प्लस आइटा एस एक्स डी एस, वेयर एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स ई रेज़्ड पावर आइटा माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स, ओके। तो इसमें परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल जो मेथड है वो आप यूज करिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो जितना सिंपल रिजल्ट होगा उतना ही बेटर है, ठीक है। हाँ, अगर कहीं पर आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो रिजल्ट आपका सेम आ जाएगा, क्योंकि अगर यहां मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहां तो मल्टीप्लाई किया है, तो एफ एक्स तो आपका सबका सेम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एफ एस की वैल्यू हर स्टूडेंट्स की अलग अलग आएगी, डिपेंड करता है वो एफ एस का कौन सा फार्मूला चूज कर रहा है, ठीक है। वो 1/2 पाई यहां लगा सकता है, वो 1/2 पाई अंडर रूट भी लगा सकता है, वो 1 भी लगा सकता है, ओके। सो लेट अस solve few problems related to evaluation of Fourier transforms of this function. Fx is equal to 1 minus x square when mod x is less than 1 and 0 when mod x is greater than 1, and use it to evaluate this integral. तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो आपको Fourier ट्रांसफॉर्म निकालना है और दूसरा इन्वर्शन फार्मूला से आपने ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, मतलब fx से आपको ये इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इसका मतलब इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें एफ एस और एफ एक्स दोनों ही एक तरह से इवेल्युएट करने हैं हमें, ठीक है। तो जो भी ये इंटीग्रल बनेगा, ये जितने भी कोई भी फार्मूला आप यूज कर लोगे इसका एक्सप्रेशन सेम बनेगा सबका, ठीक है, क्योंकि ये एफ एक्स से जनरेट होगा, ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो है वो फार्मूला बनेगा, क्लियर। नाउ लेट अस सी द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज represented by this expression, fs is equal to integral minus infinity to plus infinity fx e raised power iota s x dx, क्लियर। मैं यहां पर 1/2 पाई नहीं लगाऊंगा, मैं यहां पर 1/2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, fx is equal to 1/2 पाई इंटीग्रल fs e raised power iota s x ds, okay। now calculate this fs where fx is equal to this, clear। now fs is equal to this, substitute the value of fx। अब देखिए fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप इस रेंज को देख के करिएगा, ठीक है। अल्टीमेटली दिस इंटीग्रल इज डिवाइडेड इनटू सम ऑफ थ्री इंटीग्रल्स, थ्री डिफरेंट रेंजेस, माइनस इंफिनिटी टू प्लस 1, सॉरी माइनस 1 टू प्लस 1 and 1 to infinity। here fx this, fx this, fx this, what fx is 0 otherwise, if mod x is less than 1, result is 1 minus x square, otherwise 0, so this result is 0, this result is 0, and this fx value is 1 minus x square, okay। so we get only this term, so integral minus 1 to plus 1, 1 minus x square e raised power iota sx dx, ये, okay। substitute all these values of this function within these ranges। अब आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, use integration by parts, okay। we get three terms, clear। first as it is integral of second minus differentiation of first, integral of second, and then solve this integral, we get this term, and third integral like this way। and after substituting these limits we obtain this term, minus 2 over s square this term plus s over iota s cube this term। अब मैं इसके डिनोमिनेटर में 2 लगा रहा हूं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 आएगा, इधर ये 2 आइटा, ये आइटा अंदर ले गए, ठीक है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। एंड वी नो दिस ब्रैकेट टर्म इज cos s and this bracket term is sin s, so we obtain fs is equal to 4 common minus cos s over s square plus sin s over s cube, this means minus 4 and within the bracket this term, and this is nothing but Fourier transform of the given function, so which is the required Fourier transform of the given function, clear। तो Fourier transform
का आपका पहला कंपोनेंट जो है वो यहाँ तक कंप्लीट है। फिर आपको एक इंटीग्रल सॉल्व करना है। अब देखिए वो इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा, एंड दैट इंटीग्रल इज इंटीग्रल 0 to infinity x cos x minus sin x over x cube cos x over 2 dx। इसको आप कंपेयर करके देखिएगा, s s s x x x, इसका मतलब आप यहीं से कुछ सॉल्व करने जा रहे हो, बट लास्ट में s को आप x में रिप्लेस कर दोगे, because s is a dummy variable, so we can replace this s by x। clear? अब देखते हैं इसको कैसे करना है। so by using the inversion formula means fx, okay, so fx is equal to 1 over 2 pi integral minus infinity to infinity f fx e raised to power minus eta sx dx। substitute the value of f fx, ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, e raised to power minus eta sx को एक्सपेंड करके लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दिया। क्लियर? और जब आप इसको देखोगे तो ये जो है ये आपका ऑड फंक्शन है, तो ये इंटीग्रल जो सेकंड इंटीग्रल है वो आपका जीरो बनेगा। Since the integrand in the second integral on the right side is odd, so that integral value is 0, and here we get minus 2 over pi minus infinity to infinity this into cos sx ds। अब देखिए ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, ये 0 to infinity करना है, माइनस 4 डिवाइडेड बाई पाई 0 to infinity this term and cos sx ds। क्लियर? अब देखिए इसी रिजल्ट से आपका ये रिजल्ट कैसे आएगा, पाई इधर चला गया, 4 डिनोमिनेटर में चला गया, माइनस इधर चला गया, सो माइनस पाई बाई 4 fx। ओके, सो दिस इंटीग्रल वैल्यू इज क्लियर, माइनस पाई ओवर 4 fx मींस माइनस पाई बाई 4 fx इज व्हेन मॉड x इज लेस देन 1, fx इज दिस, अदरवाइज 0। क्लियर? अब देखिए रिजल्ट क्या करना है, रिजल्ट आपको ये करना है, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू को 1 over 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, x की वैल्यू जब 1 by 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस पाई बाई 4, 1 माइनस 1 by 2 स्क्वायर, 1 by 2 स्क्वायर। क्लियर? सो सिंप्लीफाई, वी गेट माइनस 3 पाई बाई 16, एंड रिप्लेसिंग दिस s by x वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम को आपको इस तरह से डील करना है। ठीक है, आप पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, फिर आप यूज करिए इन्वर्शन फार्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर आपका ये रिजल्ट आएगा, आप जो मर्जी फार्मूला अप्लाई कर लो, फाइनली ये रिजल्ट तो सबका सेम आएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, नाउ फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन fx। वी हैव वैल्यू 1 when mod x is less than 1 and 0 when mod x is greater than 1, and hence evaluate this integral 0 to infinity sin x over x dx। ओके, तो देखिए आपने ये फार्मूला यूज करना है, fs इज इक्वल टू इंटीग्रल fx e raised to power eta sx dx। ओके, अब देखिए जब आप ये फार्मूला यूज करोगे तो अल्टीमेटली फिर से 3 रेंजेस आएंगी यहां पे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज एंड व्हेन माइनस 1 and plus 1, x, the value of x is minus 1 to plus 1, we get 1, so minus 1 to plus 1 we get 1 value and e raised to power eta sx dx, otherwise 0। क्लियर? इसको सॉल्व किया, ये रिजल्ट आया, and this result is 2 sin s over s, so this means the value of this fs is 2 sin s over s, where s is not equal to 0, so this one is the required Fourier transform of the given function। क्लियर? रिक्वायर्ड Fourier transform of the given function। अब आपको सेकंड पार्ट देखना है, बाय यूजिंग इन्वर्शन फार्मूला fx इज इक्वल टू 1 over 2 पाई इंटीग्रल fs e raised to power eta sx ds। अब fs की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, ये इधर चल के पाई हो जाएगा। ठीक है, ये पाई इधर जा सकता है। क्लियर? सो वी गेट दिस रिजल्ट इज पाई। नाउ पुट x इक्वल टू 0, रीजन इज हमें प्रूव करना है साइन x ओवर x, सिंपली यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको 1 लेके आना है, सो पुट x इक्वल टू 0, वी गेट साइन s ओवर s ds इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई। ओके, सो वी गेट दिस रिजल्ट। ओके, क्लियर? एंड रिप्लेस दिस s by x, वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, सो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन x ओवर x dx इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये प्रॉब्लम भी सिमिलर लाइन पे आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर? Now find the Fourier transform of this function। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट नहीं पूछा गया, तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई इन्वर्शन Fourier ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना, आपने सिंपल Fourier ट्रांसफॉर्म निकालना है।
क्लियर? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या है? एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई रेज टू पावर आइटा एस एक्स डी एक्स। तो यहां भी 3 डिफरेंट रेंजेस हैं, ठीक है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू प्लस ए एंड ए टू इन्फिनिटी। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये वैल्यू जो है वो 1/2a है। सो दिस वैल्यू इज 1 डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर? सो वी गेट ओनली दिस 1 डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर? इसको इंटीग्रल को सॉल्व किया, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट किया, okay, we can write this limit like this way and we get finally sin s a over as, and that one is the required Fourier transform of the given function. Clear? तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। हर स्टेप को अलग अलग करके लिखिएगा, फिर मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है? फार्मूला क्लियर होना चाहिए, हर स्टेपिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? नाउ लेट अस डिस्कस लास्ट प्रॉब्लम। Represent fx as an exponential Fourier transforms when fx is equal to sin x, when x in between 0 to pi, otherwise 0, and show this result. Fx is equal to this. Means we have to show the inverse Fourier transforms. Okay? So inverse Fourier transforms of this problem is this. Okay? So first calculate fs. Fs is integral fx e raised power iota sx dx. अब यहाँ पर सेम प्रॉब्लम है, ठीक है? 0 टू पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू है, अदरवाइज ये भी 0 है, ये भी 0 है। सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 फंक्शन इज 0, पाई टू इन्फिनिटी फंक्शन इज 0, एंड 0 टू पाई फंक्शन इज साइन एक्स, ठीक है? बट साइन एक्स वी नो e raised power iota x minus e raised power minus iota x divided by 2 iota. So substitute here, okay? और उसके बाद आपने इसको इस ढंग से लिखना 1/2 iota कॉमन एंड विद इन द ब्रैकेट दिस इंटीग्रल 0 टू पाई, और इन सारे स्टेप्स को सॉल्व करके आपने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है? ये स्टेप आप सारे कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है? यहाँ एक एक स्टेप अलग अलग करके लिखा हुआ है, ठीक है? और उसके बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। क्लियर? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ठीक है? ये छोटा सा रिजल्ट बनेगा, एंड दैट वन इज e raised power iota pi s plus 1 divided by 1 minus s square. So this one is the Fourier transform of the given function. Okay? So fs is equal to this result, okay, which is the required Fourier transform representation. Calculate fx, second part. So fx we know 1/2 pi I, 1/2 pi integral minus infinity to plus infinity fs e raised power iota minus iota sx ds. Substitute this value here, okay? We obtain this result, okay? अब आप इसको और इसको इसी को एक्सपेंड करो और इसको एक्सपेंड करो, ये आपका आ गया, और ये इसको एक्सपेंड करके ये आ गया। इसमें कुछ भी नहीं किया है, 1/2 पाई एज इट इज। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, ये रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका 0 हो जाएगा बिकॉज दैट वन इज ऑड, ओके? So because that one is the odd function, so second integral is 0. So first integral fx we get this result. Clear? और ये फिर बन जाएगा minus infinity to infinity, तो ये 0 to infinity, okay? 2 times divided by multiply by 1/2 pi. So ये 2 है और ये cancel हो गया, ठीक है? So we get ultimately this result. Okay? Fx is equal to 1/pi integral 0 to infinity cos sx plus cos sx minus pi divided by 1 minus s square ds, and that one is the inverse Fourier transform. Okay? So इस तरह से आप कुछ और प्रॉब्लम्स की ट्राई करिएगा, ठीक है? डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में जो भी Fourier ट्रांसफॉर्म्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप देखिएगा, फिर आप ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? And next time we will discuss various properties of Fourier transforms like linearity property, change of scale property, first shifting property, second shifting property, modulation theorem, okay? Fourier transforms of the derivative, Fourier transform of the integral, and finally convolution theorem, okay? So next time we will discuss all these properties with proof, okay? In fact ये जितनी भी properties हैं इनका प्रूफ बहुत सिंपल है, डायरेक्टली बाय डेफिनेशन वी कैन प्रूव ऑल दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। बट चलो एनीवे हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक प्रॉपर्टी का प्रूफ भी करेंगे, ठीक है? और उसको स्टेट भी करेंगे, राइट? एंड देन वी विल डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स इन दैट प्रेजेंटेशन, ओके? सो थैंक यू वेरी मच।